TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے کے سبب صحت کے شعبے پر بھی دباؤ پڑ رہا ہے۔ صوبے میں 6 ماہ بعد ICU میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے کے سبب صحت کے شعبے پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ صوبے میں 6 ماہ بعد ICU میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ صوبے میں اتوار کو کورونا وائرس کے سبب 21 نئی اموات کی اطلاع ہے۔ انتہائی نگہداشت میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد 6 ماہ سے زیادہ عرصے میں پہلی بار 400 سے تجاوز کر گئی۔ صوبے میں اتوار کو 11,959 نئے کووڈ-19 کیسز بھی رپورٹ ہوئے، حالانکہ یہ تعداد یقینی طور پر بہت کم ہے۔ اونٹیریو کے صحت عامہ کے عہدیداروں نے بار بار متنبہ کیا ہے کہ 9 دن پہلے لاگو کی گئی جانچ کی ضرورت اور رسائی پر اہم حدود کی وجہ سے کیسوں کی تعداد کمیونٹی میں انفیکشن کے پھیلاؤ کی عکاسی نہیں کرتی ہے۔ ان میں سے 20 اموات پچھلے مہینے میں ہوئیں، جبکہ ایک کا پتہ 1 ماہ سے زیادہ پہلے ہونے والی اموات میں سے تھا۔ گزشتہ ہفتے میں کووڈ-19 کے لیے مثبت تجربہ کرنے والے لوگوں میں 143 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ صوبہ تعطیلات کے دوران LCBO مقامات پر مفت گھر لے جانے والے کووڈ-19 ریپڈ ٹیسٹ تقسیم کرے گا۔ اونٹیریو میں کووڈ-19 کے ساتھ اسپتال میں 2,419 مریض داخل ہیں اور ان میں سے 412 انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ انتہائی نگہداشت میں رہنے والوں میں سے 226 وینٹی لیٹر پہ سانس لے رہے ہیں۔ 14 جون 2021 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کووڈ-19 کیسز کی وجہ سے ICU کا بوجھ 400 سے تجاوز کر گیا ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پاکستانی قونصل جنرل عبدالحمید کا کہنا ہے کہ اونٹیریو صوبے اور پاکستان کے درمیان کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پاکستانی قونصل جنرل عبدالحمید کا کہنا ہے کہ اونٹیریو صوبے اور پاکستان کے درمیان کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کینیڈا کے صوبے اونٹیریو کی حکومت اور پاکستان کے مابین موجودہ معاشی تعلقات اور کاروباری شراکتیں مزید بہتر بنانے کی گنجائش موجود ہے، جس کے لیے دونوں حکومتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اونٹیریو حکومت کے معاون وزیر نے حالیہ سالوں میں IT کے شعبے میں پاکستان کی عمدہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے تسلیم کیا کہ اس شعبے میں اونٹیریو اور پاکستان کے مابین باہمی تعاون اور روابط کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ قونصل جنرل آف پاکستان ٹورنٹو عبدالحمید اور اونٹیریو حکومت کے وزیر خزانہ پیٹر بیتھلن فالوی کے درمیان ورچوئل ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اونٹیریو حکومت کے معاون وزیر برائے ڈیجیٹل گورنمنٹ کلید رشید بھی موجود تھے۔ قونصل جنرل عبدالحمید نے کہا کہ کینیڈا کی GDP اور عالمی تجارت میں اونٹیریو صوبے کا بہت بڑا حصہ ہے، تاہم کینیڈا سے پاکستان بھیجی گئی برآمدات میں اونٹیریو کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ قونصل جنرل نے دونوں وزراء کو حکومت پاکستان کی جانب سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فراہم کردہ کاروبار دوست مارات اور اقدامات سے آگاہ کیا، جن کے باعث پاکستان میں کاروبار کرنے کے مراحل اور سہولیات میں بڑے پیمانے پر بہتری آئی ہے، جس سے پاکستان کاروباری سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے عالمی بینک کی درجہ بندی میں 46 درجے اوپر چلا گیا ہے۔ اونٹیریو حکومت کے وزراء نے کینیڈا کے سماجی ڈھانچے اور معیشت میں کینیڈین پاکستانیوں کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے پاکستان اور اونٹیریو حکومت کے مابین متفقہ امور پر باہمی تعاون بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی۔ قونصل جنرل آف پاکستان ٹورنٹو عبدالحمید نے صوبے کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں کلیدی حیثیت کے تناظر میں دونوں وزراء کو پاکستان کے IT شعبے میں حالیہ سالوں میں ہونے والی پیش رفت، بالخصوص پاکستانی اسٹارٹ اپس میں بڑھتی ہوئی عالمی سرمایہ کاری جو 2021 میں پچھلے 6 سالوں سے زیادہ تھی، سے آگاہ کیا۔ اونٹیریو حکومت کے معاون وزیر نے حالیہ سالوں میں IT کے شعبے میں پاکستان کی عمدہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے تسلیم کیا کہ اس شعبے میں اونٹیریو اور پاکستان کے مابین باہمی تعاون اور روابط کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ کینیڈا کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ ملک کووڈ-19 وبا میں ایک ایسے وقت تک پہنچ جائے گا جب صوبے بڑھتے ہوئے معاملات کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین کی وسیع تر مینڈیٹ پر عمل درآمد پر غور کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کینیڈا کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ ملک کووڈ-19 وبا میں ایک ایسے وقت تک پہنچ جائے گا جب صوبے بڑھتے ہوئے معاملات کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین کے وسیع تر مینڈیٹ پر عمل درآمد پر غور کریں گے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 24,37,822 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں
30,584 हो गई। मुल्क भर में 20,30,568 से जायद मरीज सेहत याब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 8,41,371 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 10,272 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 6,96,182 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,846 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 3,88,995 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,336 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 2,73,731 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,430 है। अमरीकी मरकजी इदारे की 2 हालिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमरीका और दीगर ममालिक की इमदाद और तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को तश्कील देंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमरीकी मरकजी इदारे की 2 हालिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमरीका और दीगर ममालिक की इमदाद और तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को तश्कील देंगे। इन रिपोर्ट्स में वाशिंगटन से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने अमरीका और उसके इत्तेहादियों को याद दहानी कराई है कि सिर्फ इंसानी बुनियादों पर की गई इमदाद अफगानिस्तान में मुआशी इन्हिदाम नहीं रोक सकती। USIP ने रवां हफ्ते एक बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट जो कि 2021 में अफगानिस्तान और दीगर मामलात से मुतालिक तैयार की थी के खुलासे के तौर पर 2 रिपोर्ट्स जारी की हैं। अफगान और पाकिस्तानी माहिरीन के इंटरव्यूज पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट इन कुलीदी अवामिल की निशानदही करती है जो उन ममालिक के दरमियान तनाज़ात और ताल्लुकात के दरमियान मौजूद है, और साथ ही वजाहत करते हुए कि कैसे 2 तरफा ताल्लुकात अफगानिस्तान में मुस्तकबिल के नताइज को मुतासिर कर सकते हैं। रिपोर्ट इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ एक मुस्बत ताल्लुक इस्तेहकाम को मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ताहम रिपोर्ट में खबरदार भी किया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान शिकायत और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए इसके बरक्स नताइज भी बरामद हो सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट में डॉक्टर विलियम बाइड ने लिखा है कि कैसे अफगानिस्तान के मुआशी और इंसानी बहरान को कम किया जाए। मुसन्निफ का कहना है कि अफगानिस्तान के लिए बुनियादी धचका उसकी अचानक सालाना $8 अरब की इमदाद का बंद होना और अफगानिस्तान के $9 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर का मुंजमद होना था। मुसन्निफ ने मजीद लिखा कि हालिया दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका दोनों तालिबान पर आयद अपनी पाबंदियों में नरमी के लिए कई इक़दाम किए हैं। डॉक्टर बाइड ने खबरदार किया कि सिर्फ इंसानी इमदाद अफगान मईशत को महफूज नहीं बना सकती। उन्होंने निजी कारोबार और कमर्शियल सरगर्मियों का अहाता करने वाली पाबंदियों के खात्मे की तजवीज़ दी है। उन्होंने $90 करोड़ के अफगानिस्तान के मुंजमद ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली की तजवीज़ देते हुए कहा कि इससे मुल्क में बैंकिंग निज़ाम को बहाल करने और तबाही से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने रवां साल के कौमी बजट को अवामी सतह पर दस्तयाब और काबिल एतमाद बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट की इमारत में आग लगने से 9 बच्चों समेत कम से कम 19 अफराद हलाक हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट की इमारत में आग लगने से 9 बच्चों समेत कम से कम 19 अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क के 19 मंजिला रहायशी इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लगने से 9 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक हो गए, जबकि आग इस कदर खौफनाक थी जिसके शोले खिड़कियों से बाहर निकल रहे थे। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स के मुताबिक आग से झुलसकर 32 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स के मुताबिक 32 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से अक्सर की हालत तशवीशनाक है। हुक्काम के मुताबिक आग इमारत की दूसरी या तीसरी मंजिल पर लगी। 200 फायर फाइटर्स ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। दूसरी जानिब फायर डिपार्टमेंट के कमिश्नर ने कहा कि आग बिजली के हीटर की खराबी की वजह से भड़की, जबकि न्यूयॉर्क में 30 सालों में सबसे ज्यादा हलाकतें देखने में आई हैं। ताहम इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारत में महलिक आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। कर्फ्यू के बावजूद मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
भारत में मोहलिक आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। कर्फ्यू के बावजूद मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत में वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद कोरोना केसेस में इजाफा हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिर्फ नई दिल्ली में 22,751 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। भारतीय मीडिया का कहना है कि अब तक पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव में इजाफा हुआ है, जिसके सबब एक दिन में 1,59,000 केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 55 लाख से तजावुज कर गई है। 30,80,59,018 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 25,96,54,758 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 8,55,843 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 5,95,64,116 हो चुकी है। भारत में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3.5 करोड़ से जायद हो गई। ब्राजील में केसेस की मजमूई तादाद 2 करोड़ 23 लाख तक हो गई। बरतानिया में मजमूई केसेस 1 करोड़ 40 लाख हो गए, जबकि फ्रांस में 1 करोड़ 10 लाख और रूस में 1 करोड़ से जायद केसेस हो गए। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 83,231 तक जा पहुंची हैं, जबकि केसेस 97,87,274 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 64वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,888 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,68,650 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन को हल्का करार देने के खिलाफ खबरदार किया है और कहा है कि ये दुनिया भर में लोगों को हलाक कर रहा है। WHO के सरबराह ने कहा कि लोगों की रिकॉर्ड तादाद ने सेहत के निज़ाम को शदीद दबाव में डाल दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेहत की एजेंसी ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान आलमी वबा की तादाद में 71% और अमरीका में 100% इजाफा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन जो संगीन सूरत हाल तक पहुँच रहे हैं, उनमें से 90% ने वैक्सीन नहीं लगवाई। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।